Dear students, welcome all of you in session number 2 of chapter number 12. So today we are going to do question number 5 onwards of exercise 12.2. Okay, so come for question number 5. In a circle of radius 21, an arc subtends an angle of 60 degree at the center. Find the length of the arc. Number 2, area of the sector and area of the segment. Length of the arc भी पूछा है, area of the sector पूछा है और area of the segment भी पूछा है. Very good question. This kind of question can come in the exam. Angle has been given 60 degree, radius is 21. First of all, we are going to find out the length of the arc. Theta upon 360 multiplied by 2 pi r. Chaliye, very simple question, everybody. Do it. Answer is 22 centimeter. 60 by 360 2 pi r लेंथ ऑफ द आर्क पूछा है. नेक्स्ट वाले में पूछा है एरिया ऑफ द सेक्टर 60 by 360 pi r square. It's also very simple. 231 centimeter square. Now we have to find out the area of the segment, for which what we have to do? We have to subtract the area of the triangle. Area of the triangle AOB. एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? 60 डिग्री किया है, दोनों ये रेडियस है, दोनों साइड सेम है, तो आमने सामने का एंगल भी सेम है. इट इज ए equilateral triangle and the side is equal to radius. So what is the formula? Formula is root 3 by 4 side square, the area of an equilateral triangle. Yes, सीधे area of the equilateral triangle निकालिए. So it will you can if you want to prove it, AO is OB is equal to radius, and all these angles is 60 degree because the angle opposite to the sides will be equal. 180 minus 2 angle, it will be 120. तो एक एंगल हो गया 60 डिग्री का. इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर प्रूव करना है तो कर सकते, नहीं करे तो डायरेक्ट भी अंडरस्टूड है. सो एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल इज सिंपली दिस, रूट 3 by 4 and 4 into 4 1. बस एरिया ऑफ द सेगमेंट निकाल लीजिए. एरिया ऑफ द सेक्टर OACB माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, एंड दिस इज माय आंसर. सिंपल क्वेश्चन, एग्जाम में आने जैसा है. वेरी गुड क्वेश्चन. फिगर बनाएंगे. एरिया ऑफ द आर्क theta by 360 divide into multiply by 2 pi r. Answer is the arc length is 22 centimeter. Area of the sector pi r square 231, and area of the triangle is root 3 by 441. So the area of the segment will be the area of the sector minus area of the triangle will be, the answer will be. Okay. Question number 6. A chord of a circle of radius 15 centimeter subtend an angle of 60 degree at the center. Find the area of the corresponding minor and major segment. सिंपल निकालिए. 60 डिग्री एंगल है, रेडियस 15 है, 15 सेंटीमीटर. पहले वही फॉर्मूला लगाओ, एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालो. सिंपल. एरिया सबसे पहले हमने निकाला एरिया ऑफ द सेक्टर 60 upon 360 थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर. यहाँ बोला है क्या पाई यूज करने के लिए? यस, इन्होंने बोला है.
कि यू हैव टू यूज द पाई 3.14 यूज करना है, एंड यहाँ भी बोला है √3 इज इक्वल टू 1.73 यूज कर लिखना है, हमको बोला है. सो एरिया ऑफ द सेक्टर वी आर गेटिंग इज 117.75. अब अपने को क्या करना है, इक्विलेटरल ट्राइंगल वापस 60 डिग्री बनाया, इसलिए √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. यहाँ पर आप √3 की वैल्यू रख दीजिए, 1.73 रखिए, यू विल गेट द एरिया ऑफ द सेक्टर. अब आएगा एरिया ऑफ द सेगमेंट, एरिया ऑफ द सेक्टर में से एरिया ऑफ द ट्राइंगल माइनस कर दीजिए, चलो करिए माइनस, यू विल गेट दिस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट. अभी इन्होंने क्या पूछा है, मेजर सेगमेंट भी पूछा है. मेजर सेगमेंट निकालने के लिए क्या करना है, टोटल एरिया में से माइनर सेगमेंट को माइनस कर दीजिए, तो टोटल एरिया इज द पाई आर स्क्वायर. टोटल एरिया इज द पाई आर स्क्वायर माइनस दिस एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट, यू विल गेट. कैलकुलेशन करिए करिए करिए, डू द कैलकुलेशंस. ये बहुत इजी क्वेश्चन में आता है, गलत नहीं होना चाहिए. 60 डिग्री दिया है, 15 उसका रेडियस है, θ/160 पाई आर स्क्वायर, मल्टीप्लाई करिए, आंसर निकालिए. उसके बाद इक्विलेटरल ट्राइंगल निकालिए, √3/4 इंटू 15 स्क्वायर. देन एरिया ऑफ द स्मॉल सेगमेंट, area of the minor segment. Now area is the major segment is the pi r square minus the area of the small segment, minor segment. The answer will be this. Question number 7. A chord of a circle of radius 12 subtend an angle of 120. Find the area of the corresponding segment. पाई हमको यूज करना है this 3.14. यहां एंगल आ गया 120. एग्जाम्पल किया है, यस याद कर लो. एंगल आ गया 120, यस. सो वी हैव टू फाइंड आउट. सबसे पहले हमको ये हाइट और ये निकालना पड़ेगा, हाइट एंड द बेस हमको निकालना है. हम क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ड्रॉ ए परपेंडिकुलर. OM इज परपेंडिकुलर अपॉन PQ. सो दिस विल बी 90. दिस इज 120 का डिविड वो हो जाएगा बाइसेक्टर, तो 60 हो गया, रिमेनिंग इज 30. रेडियस दे रखा है 12, दैट इज हाइपोटेन्यूस. We have to find out the OM, so we will apply sin 30 is equal to OM upon 12 and we will get OM is equal to 6 centimeter. हाइट मिल गया. बेस के लिए क्या करेंगे, चलो cos 30 लगा दो. cos 30 में हमारे पास MQ upon this, MQ आ रहा है मेरे पास 6√3. अभी A अपने को चाहिए PQ, तो PQ इज इक्वल टू 2 इंटू MQ, बिकॉज वो बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया. आई एम गेटिंग द बेस. फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्राइंगल OPQ, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट. सो माई एरिया ऑफ द ट्राइंगल विल बी दिस. नाउ सिंपली एरिया ऑफ द सेक्टर, अच्छा एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना बाकी है, निकालिए. एरिया ऑफ द सेक्टर 120 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, 48 पाई. एरिया ऑफ द सेगमेंट 48 पाई माइनस 36 √3. इसको मैंने पाई की वैल्यू ये रखा, मल्टीप्लाई कीजिए, √3 की वैल्यू रखे, मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट दिस एंड आंसर विल बी दिस. करिए मल्टीप्लिकेशन. जब एंगल 90 था तो हमारे पास एक बेस हो गया, एक हाइट हो जाता था, वेरी सिंपल. जब एंगल 60 डिग्री था तो इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. जब एंगल 120 हो गया तो मेरे को साइन थीटा कॉस थीटा निकाल के बेस और हाइट निकालना पड़ा. ओके, एनीबडी की इफ यू वांट टू सी यू कैन लुक इट. साइन 30 OM आ गया, कॉस का अप्लाई किया, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस
ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ लेना, नहीं पढ़ा तो दिक्कत आएगी। सो पी क्यू इज इक्वल टू ट्वाइस, सभी चीज़ें काम आती है, ज्योमेट्री भी काम आ रही है, ट्रिग्नोमेट्री भी काम आ रही है, कैलकुलेशन भी काम आ रही है ना बेटा, सभी काम आता है। लेकिन ये धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से सब कुछ आ जाता है। सो एरिया ऑफ द सेक्टर निकाला और उसको उसमें से जब सेगमेंट का निकालना है तो एरिया ऑफ द सेक्टर में से ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दिया बेटा, 88.44। अब अच्छा क्वेश्चन है, अभी थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। ए हॉर्स इज टाइड टू ए पैक at one corner of a square shaped grass field of size 15 by means of a 5 meter long rope। एक स्क्वायर फील्ड है, उसका साइड 15 मीटर है, एक घोड़े को 5 मीटर की रस्सी से एक कोने से बांध दिया है। हमको निकालना है पहले तो कि वो घोड़ा है ना, हॉर्स, वो कितना एरिया में ग्रेजिंग कर सकता है, घास चर सकता है। क्या करोगे, क्या करोगे बताओ। ये उसका सर्किल हो रहा है, ये सर्किल हो रहा है, रेडियस मेरे पास 5 मिल रहा है, रेडियस मेरे पास 5 मिल रहा है, एंगल 90 डिग्री क्योंकि स्क्वायर है। हो गया काम। हाँ, थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 360, करो पाई आर स्क्वायर, करो करो करो, बहुत इजी। ये मेरे फिगर बनाइए सबसे पहले, ये मेरा रेडियस 5, एंगल 90 डिग्री। So area of the sector will be 90 upon 360 pi r square। Yes, निकालिए एरिया ऑफ द सेक्टर। अपन को पाई कितना यूज करने के लिए बोला है, कुछ बोला नहीं है, ओके बोला है 3.14 लिखा है। सो 3.14 रखिए पाई की वैल्यू एंड यू विल गेट दिस। घोड़ा कितनी जगह पे घास चरेगा, घास चरेगा मीटर स्क्वायर करो, ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, गलती मत करना, ये मीटर स्क्वायर है। 19.625 मीटर स्क्वायर इज द एरिया वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द इंक्रीज ऑफ द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टीड ऑफ 5 मीटर। अगर रोप की लंबाई को 5 मीटर से बढ़ाकर 10 मीटर कर दिया जाए तो एरिया कितना होगा, कितना होगा, सिंपल है 90 बाई 360 पाई आर स्क्वायर, आर 10 बन जाएगा। इसमें क्या बड़ी बात है बताओ। ये आ गया 1/4, इसको इसमें काटिए 100, ये 25 पाई, पाई की वैल्यू रख दीजिए 3.14, आंसर आ जाएगा। ये भी मीटर स्क्वायर है। जब 5 मीटर की रस्सी थी तो एरिया था 19.625 मीटर स्क्वायर, और जब 10 मीटर की रस्सी हो गई तो एरिया हो गया 78.5 मीटर स्क्वायर। बस यही पूछा है, इंक्रीज इन एरिया भी पूछा है। ये लिखना मत भूलना एग्जाम में, कभी कभी पूछने, इंक्रीज इन द एरिया, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, करिए, डू द कैलकुलेशन। मेरे साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाओ, बस सॉल्व करते जाइए। कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन देख के नहीं करना है, अपने मन से करना है। क्वेश्चन नंबर 9, ए ब्रूच is made with a silver wire in the form of a circle with a diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors. Find the total length of the silver wire required, the area of each sector of the brooch. Question क्या है, सिल्वर के वायर से ब्रूच बनाना है और उसका डायमीटर दे रखा है 35 mm, रेडियस निकालो, 2 पाई आर निकालो, बाहर का सर्किल आ जाएगा, अंदर डायमीटर कितने दिए 5, अंदर डायमीटर दिए 5, तो अंदर भी तो अपने को वायर लगाना है ना, अंदर भी तो अपने को वायर लगाना है, तो अपने को क्या करना है 2 पाई आर प्लस 5 इंटू 35, ये मेरा आंसर आ जाएगा।
यहां भी डायरेक्ट 2r डायरेक्ट डी लिख सकते हो, 2r इज इक्वल टू डी। चलो करो फटाफट, ये फिगर बनाओ, ए बी इज इक्वल टू 35 डायमीटर, कॉन्फ्रेंस सरकमफ्रेंस सॉरी 2 पाई आर, तो 2 इंटू आर इज इक्वल टू 35 इंटू पाई, सीधा आ गया मेरे पास 2 पाई आर इज इक्वल टू सरकमफ्रेंस 110 mm। फिर मेरे को 35 इंटू 5 डायमीटर, 5 वायर बीच में भी जोड़े, तो ये हो गया 35 इंटू 5 175। टोटल सिल्वर वायर रिक्वायर्ड इज 285 mm। इजी क्वेश्चन है कि नहीं, बोलो? अच्छा क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन है एरिया ऑफ द सेक्टर। क्या पूछ रहा है? टोटल इन एरिया ऑफ ईच सेक्टर। अब सेक्टर कितने बन रहे हैं भैया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सेक्टर बन रहे हैं। तो एक सेक्टर में कितना एंगल हो गया? 10 सेक्टर वी हैव, सो द ईच sector will have the equal angle, that is 360 divided by 10, 36 डिग्री का मेरे पास एंगल है। लगा दो थीटा बाई 360 डिवाइड मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। चलो डू इट 36 बाई 360 पाई आर स्क्वायर 35 बाई 2, गलती मत करना। चलो करो कैलकुलेशन, you will get 96.25 mm स्क्वायर। mm स्क्वायर लिखना मत भूलना, करिए कैलकुलेशन। इट इज सिंपल कैलकुलेशन, काटना है तो काटिए। देखो इधर क्या लिखा है, ये 1/10 हो गया 22, ये इसको 7 से काटा, 5 टाइम्स 4, इसको 11 आ गया, तो नीचे आ गया 2 इंटू 20 1925। फिर इसको वापस से 2 से काट लिया, फिर वापस 10 से उसका पॉइंट लगा दिया। आ गया आंसर। तो आपने लेंथ ऑफ द वायर भी निकाल दिया, पहले सरकमफ्रेंस निकाला, फिर आपने 35 इंटू 5 डायमीटर करके उसको जोड़ दिया। यू हैव गॉट द वायर रिक्वायर्ड। नाउ अब जब सेक्टर की बात आई तो आपने एंगल निकाला, एंगल आया 36, आपने फिर फॉर्मूला लगाया एंड यू गॉट द आंसर। क्वेश्चन नंबर करेंगे 10। एन अम्ब्रेला ऑफ 8 रिब्स। अब 8 रिब्स है, अम्ब्रेला ऑफ 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड, assuming umbrella is to be flat circle of radius 45, find the area between two consecutive ribs of an umbrella 360 total degree divide by 8। आपका थीटा आएगा और रेडियस आपको दे रखा है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो if we divide 360 by 8 we are getting theta is equal to 45 degree। So area of the sector will be 45 by 360 pi r square। चलिए ये हो गया 1/4 1/8 और पाई की वैल्यू रखी। चलो करो सॉल्व, ये मेरा आंसर आ गया। देखो ये भी आंसर अलाउड है, अगर आपको काटना जहाँ कहीं काटने से रुक जाए तो वो भी आंसर लिख सकते हो, वो आंसर भी सही है। इजी क्वेश्चन है कि नहीं बताओ बच्चों? सबसे पहले एंगल निकाल दिया, बस फिर क्या किया बोलो? बहुत सिंपल है कि नहीं बताओ? कोई भी बच्चा इसको टफ कैसे मान सकता है? करो कैलकुलेशन। क्वेश्चन नंबर 11। ए कार हैज 2 वाइपर्स which do not overlap. Each wiper has a blade length of 25 centimeters sweeping through an angle of 115 degree. Find the total area cleaned. कार के ऊपर 2 वाइपर है, 115 डिग्री 115 डिग्री पे वाइपर घूमता है। वाइपर का लेंथ दिया है 25 सेंटीमीटर, निकाल लो।
थीटा अपने 115 है और रेडियस 25 है, एक वाइपर का आ जाएगा टोटल एरिया सेक्टर, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा. So we are getting the R is equal to this, theta is equal to, each wiper will cover area is equal to theta upon 360 pi r square. करिए कैलकुलेशन. अभी मेरे पास ये आ रहा है, डरिए मत, जहां नहीं कट रहा है चिंता मत कीजिए. Each wiper will cover this much area. Now I have the 2 wipers, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से इसको काटा, 126. My answer is simple क्वेश्चन. वाइपर का रेडियस है, थीटा दिया हुआ है, फॉर्मूला लगाया, 2 वाइपर से 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, करो क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 12. To warn ships for underwater rocks, a lighthouse sprayed a red colored light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometers. Find the area of the sea over which the ships are warned. समंदर के अंदर एक लाइट हाउस है, वहां से लाइट भेज रहे, लाल कलर की लाइट है, वो ऐसे ऐसे घूमती है, ऐसे ऐसे टोटल एंगल कवर कर रही है 80 डिग्री का, और जहां तक लाइट जा रही है वो डिस्टेंस है 16.5 किलोमीटर. तो कितने एरिया में आप वार्निंग दे सक रहे हो? थीटा अपॉन 360, थीटा 80 डिग्री है, 80 पाई बोला 3.14 यूज करना. रेडियस मेरे पास 16.5 किलोमीटर है, किलोमीटर आया आपकी बार. थीटा इज इक्वल टू दिस एंड रेडियस इज इक्वल टू दिस. द एरिया विल बी 80 अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर. करो मल्टीप्लाई. So I will get 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. निकालिए बच्चों कैलकुलेशन. ये तो हो जाएगा 2/9. फिर कहाँ काटना है काटिए, ये कटेगा, इसको भी नीचे लाओ 0, इसको भी नीचे लाओ 0, ये 3 से कट रहा है, 5 55, फिर ये आया 3, फिर वापस ये भी कट रहा है. तो ये हो जाएगा तुम्हारा 110 इंटू 55 इंटू 3.14 अपॉन 100. इसको भी उड़ा दो, ये 100 करो ऊपर का मल्टीप्लाई, ये 0 से ये 0 कट रहा है. अब मेरे पास आ रहा है, देखो निकालो सिंपल, 11 इंटू 55 इंटू 314 डिवाइड बाई 1000. ये निकालो कैलकुलेशन. निकालिए कैलकुलेशन. आंसर ये आना चाहिए 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. क्वेश्चन नंबर 13. A round table cover has 6 equal designs. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. Use √3 is equal to 1.7. 1.73 नहीं, 1.7. 6 पार्ट में डिवाइड कर रहा है ना, 6 पार्ट में. एक पार्ट बनाएगा एंगल 60 डिग्री का, 360/6, और मेरा रेडियस 28 है. सबसे पहले आपको क्या करना है, एक सेगमेंट का एरिया निकालना, सेक्टर नहीं सेगमेंट. चलो निकालते हैं. R is equal to 28, 6 डिजाइन है तो एंगल इज 60 डिग्री. एरिया ऑफ वन सेक्टर विल बी 60 अपॉन दिस पाई आर स्क्वायर. निकालो कैलकुलेशन. यू आर गेटिंग 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ वन सेक्टर. वन सेक्टर है. अब अपने को ट्राइंगल का एरिया निकालो. ट्राइंगल बन रहा है इक्विलेटरल, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर. चलो
√3/4 इंटू साइड स्क्वायर को इसमें से माइनस करो तो एरिया ऑफ द सेगमेंट आएगा, निकालिए, कैलकुलेशन करिए। यू आर गेटिंग द एरिया ऑफ वन सेगमेंट इज इक्वल टू दिस 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कितना डिजाइन है, 6 डिजाइन है, तो यू आर गेटिंग टोटल एरिया विल बी दिस 6 डिजाइन से टोटल एरिया डिजाइन का इतना आ गया, उसका रेट कितना है 35 पैसा, मल्टीप्लाइड बाय दिस यू आर गेटिंग दिस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है बच्चों। ये एक एरिया हमको निकालना है, 60 डिग्री का एंगल है, बस क्या बड़ी बात है बताओ। मेरे पास रेडियस भी है, एंगल भी है, मैंने एरिया ऑफ वन सेक्टर निकाला, आप काटना है काटो, ये आ रहा 410.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर अपने को सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो इसमें से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर दो, ये मेरा वन सेगमेंट का एरिया आया। वन सेगमेंट के एरिया को 6 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल एरिया आ जाएगा सेगमेंट वाला, डिजाइन वाला। फिर इसको 35 पैसे से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट आ जाएगी, करो मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई तो आपको आता है ना, यही तो प्रैक्टिस है, करो। क्वेश्चन 14, एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ ए सर्किल विद रेडियस R विल बी, क्या होगा भाई? मेरे पास तो एक फॉर्मूला है P/360 इंटू πr²। अब तो यहाँ तो कोई भी नहीं, ये भी नहीं है, और नहीं सर ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, वह ये भी नहीं दिख रहा है, लेकिन ये क्या किया है, P/720 और 2πr² कर दिया। अच्छा ओके, इसका मतलब इसको मैं काटूंगा तो ये बन जाएगा 360। दिस इज माई राइट आंसर। आंसर इज डी। Answer is D. We have done exercise 12.2. All questions. And everybody has to do all questions. अभी आपने वीडियो से देखा, साथ में किया, एक बार बिना देखे करना है ना, बिना देखे करना है। कैलकुलेशंस का बहुत इंपॉर्टेंस है। और आने वाला जो एक्सरसाइज आने वाली है वो और टेक्निकल है, मस्त वाली है। हम अब पढ़ने वाले हैं एरियाज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन। अब कॉम्बिनेशन है, सर्किल भी है और दूसरा ट्रायंगल आएगा, कहीं स्क्वायर आएगा, सब मजा आएगा। फर्स्ट एग्जांपल से शुरू कर रहे हैं। चलिए एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाओ बच्चों। Example number 4, figure 12.15, two circular flower beds has been shown on the two sides of the square lawns of ABCD of side, ABCD का side दे रखा है, square का side दे रखा है 56 centimeter. If the center of each of the circular flower bed is a point of intersection O of the diagonal of the square lawn, find the sum of the areas. एग्जाम्पल नंबर 4 क्या दिया है भैया, पूछो बस। देखो एक स्क्वायर दिया हुआ है और उस स्क्वायर के दोनों तरफ कुछ राउंड में लॉन लगा रखा है। अब ये राउंड में जो आपने लॉन लगाया है, ये इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस है OB। सर ये रेडियस है। अच्छा, डायगोनल का अगर अपन हाफ कर दें, डायगोनल का अगर हाफ कर दें तो मेरा रेडियस आ रहा है। ओके, तो डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल कैसे निकालेंगे? डायगोनल निकालने का तरीका तो ये भैया, ये 56, ये 56, पाइथागोरस लगाएंगे, डायगोनल निकाल लेंगे, डायगोनल निकाल के उसका आधा कर देंगे, वो मेरा रेडियस आ रहा है, पहला काम। और ये एंगल जो है ना, ये एंगल 90 डिग्री है,
क्योंकि स्क्वायर का डायगोनल उसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, एंगल भी आ गया, रेडियस भी आ जाएगा, फिर तो निकाल लेंगे। ओके, कम, दिस इज माय फिगर। सबसे पहले मैंने ओ ए और ओ बी दोनों को एक्स मान लेता हूँ, डायगोनल नहीं निकाल रहे, चलो ये मेरे लिए हाइपोटेन्यूस हो गया, ए बी हाइपोटेन्यूस हो गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है ना, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 56 इंटू 56। एक्स स्क्वायर मेरे पास आया है, एक बार एक्स स्क्वायर मैंने निकाल लिया है, रेडियस का स्क्वायर निकाल लिया है, 28 इंटू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक्स स्क्वायर निकाला मैंने, अभी मल्टीप्लाई नहीं किया, ऐसे ही रख दिया उसको, क्योंकि अभी वो कटेगा कहीं पे। एरिया ऑफ द सेक्टर ओ ए बी 90/360 पाई एक्स स्क्वायर, यहां एक्स रेडियस है, 90/360 ये हो गया 1/4, पाई की वैल्यू रखी, एक्स स्क्वायर की वैल्यू रखी, आई हैव गॉट एरिया ऑफ सेक्टर। अब मुझे क्या करना है, एरिया ऑफ द triangle OAB is the half of the area BCD. एरिया ऑफ द ट्राइंगल OAB वैसे भी निकल रहा था, चलो इतना करने की जरूरत नहीं थी। एरिया ऑफ द ट्राइंगल AOB सिंपली, ये मेरा बेस है, ये मेरा हाइट है, सिंपली करो 1/2 इंटू, अच्छा मेरे पास यहाँ स्क्वायर में रखा है ना, अच्छा ये चक्कर है, मेरे पास x नहीं है ना, मुझे x चाहिए था। तो मैंने क्या किया, मैंने दिमाग लगाया कि ये जो एरिया है ना, ये वाला, ये एरिया, अगर ये एरिया निकाल देता हूं और इसका आधा कर देता हूं तो इजी रहेगा मेरे लिए, कैलकुलेशन करना इजी रहेगा, क्योंकि मुझे ये मालूम है ये 56 है और ये भी 56 है, 1/2 56 इंटू 56 करता हूँ और उसका 1/2 कर देता हूँ, है ना, उसका 1/2, तो 1/2 ऑफ इसका एरिया BCD का एरिया निकाला, 56/56 डिवाइड बाई 4, मेरा एरिया ऑफ द ट्राइंगल, मेरा वाला छोटा वाला ट्राइंगल का एरिया आ गया क्या, ये वाला मेरा एरिया आ गया, ये एरिया आ गया। सेक्टर का मेरे पास मालूम है, इसमें से माइनस कर दूंगा तो ए बी वो सेगमेंट का आ जाएगा। सो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड विल बी 1232 - 784 इज इक्वल टू 448। मेरे पास फ्लावर बेड का एरिया आ गया। टोटल एरिया स्क्वायर का मुझे मालूम है 56 इंटू 56, और फ्लावर बेड ऊपर भी है नीचे भी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आया 4032 मीटर स्क्वायर। मीटर है क्या, चेक कर लो, एग्जाम्पल बुक का है, चलो बुक में कैसे किया है देखते हैं। एरिया ऑफ दिस है, इसको एक्स स्क्वायर बिल्कुल सही है, ठीक है। एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लिया, ओके ये बिल्कुल सही है। एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ये भी वही तरीका लगाया, 1/4 कर दिया। एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, इसमें से इसको माइनस कर दिया, ओके वेरी गुड। सो एरिया ऑफ द फ्लावर बेड मेरे पास आया, टोटल एरिया 2 से मल्टीप्लाई किया, एंड ऑल्सो ही इज गेटिंग आंसर 4032। अगर आपको बुक की कैलकुलेशन में थोड़ा डाउट लग रहा है तो वापस से अपने वाले मेथड को चेक कर लीजिए। OAOB x मान लिया, पाइथागोरस लगा लिया, मेरे पास x स्क्वायर आ गया। एरिया ऑफ द सेक्टर OAB निकाला, x स्क्वायर की वैल्यू रखी, 1232 सेक्टर आ गया। ट्राइंगल का निकालना है, बड़े वाले ट्राइंगल का आधा कर दिया, मेरे पास आ गया 784, 784, और इसमें से इसको माइनस किया तो मेरे पास आ गया 448 फ्लावर बेड का। अब मुझे निकालना था टोटल एरिया, तो ये मैंने स्क्वायर का एरिया और 2 इंटू 448, बस। डू इट बच्चों, करो इसको, समझ के करो, रुकना नहीं है।
डू इट योरसेल्फ, समझ के करो। चलेंगे एग्जाम्पल नंबर करेंगे 5। एक तरीका और बता रखा है, टोटल एरिया सेक्टर ओ ए बी चारों का सेक्टर ले लिया है, ये भी अच्छा आइडिया है। दूसरा तरीका भी लगाया इन्होंने, ये भी आप करना, कोशिश करना। दूसरा तरीका क्या किया है, पहले इस सेक्टर का निकाला, फिर इस सेक्टर का, ये दोनों सेम है, दोनों सेक्टर निकाल लिए, फिर दोनों ट्राइंगल का निकाल लिया। ये भी अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है। पर इसमें x तो अपने को निकालना ही पड़ेगा ना भैया, x तो अपने को निकालना ही पड़ेगा, ये अपने को x स्क्वायर तो निकालना ही पड़ेगा। एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन वेयर ABCD इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 14। शेडेड रीजन निकालना है भैया, स्क्वायर दिया हुआ है 14 की साइड वाला है, तो सर्किल का रेडियस कितना है? अगर स्क्वायर की साइड 14 है, बीच में दो सर्किल आ रहे हैं, यहां से सीधी लाइन में खींचूं तो इसका मतलब एक सर्किल का डायमीटर 7 आ रहा है, तो सर्किल का रेडियस आ रहा है 7/2। तो 4 सर्किल 7/2 रेडियस के, उनका चारों का वो निकाल लो एरिया, उसको स्क्वायर के एरिया में से माइनस कर दो, शेडेड पोर्शन आ जाएगा। सबसे पहले निकाला एरिया ऑफ द स्क्वायर, फिर निकाला रेडियस ऑफ द सर्किल, फिर निकाला एक सर्किल का एरिया πr²। हाँ, इसको जरा सॉल्व कर दिया, जरा काटा इसको, तो 77/2 आया। कितने सर्किल है? 4 सर्किल है, 4 से मल्टीप्लाई किया तो चारों सर्किल का मेरे पास एरिया आ गया 154। 154 को इसमें से अपन ने स्क्वायर वाले में से माइनस कर दिया तो आ गया 42। पहले मेरा देख लो, फिर बुक का भी देखेंगे। एरिया ऑफ द स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्किल, एरिया ऑफ वन सर्किल, दिस 4 सर्किल, दिस स्क्वायर के एरिया में से सर्किल का एरिया माइनस किया, एंड आई एम गेटिंग 42। सेम क्वेश्चन नंबर है, एग्जाम्पल नंबर है 6। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ABCD is a square of side 10 and semicircles are drawn with each sides of the square is of the diameter. इसमें क्या किया, ये स्क्वायर दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर की साइज का, और इसमें ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल, 4 सेमी सर्किल है, 4 सेमी सर्किल है, 4 सेमी सर्किल है। हमको निकालना है ये शेडेड पोर्शन। सेमी सर्कल का रेडियस क्या होगा बच्चों? सेमी सर्कल का रेडियस होगा 5। तो क्या करें, इसको सबसे पहला काम इन्होंने ये किया कि इसको 4 1 2 3 4 में डिवाइड कर दिया। अब अपन निकालेंगे एरिया ऑफ 1 and 2, ये 1 और ये 3rd, ये सामने आमने सामने वाला। एरिया ऑफ द स्क्वायर लिया पहले, एरिया ऑफ द स्क्वायर लिया और इसमें से इसको और इसको माइनस किया, एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्कल्स।
तो 10/10 का तो एरिया स्क्वायर का हो गया, π/2 पाई आर स्क्वायर है, तो सेमी सर्किल है तो π/2 कर दिया, फिर 2 है, 2 सेमी सर्किल है तो मैंने दोनों लिख दिया, तो वैसे तो कट रहा है, पर ये समझ लेना कि ये सेमी सर्किल था ना, इसलिए मैंने π/2 किया, आधा किया, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये मेरे पास आ गया एरिया 1/3। सिमिलरली मैंने निकाला एरिया 2nd and 4th, दोनों निकाला। अब मुझे शेडेड पोर्शन निकालना है, तो एरिया ऑफ द ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 4, जो मैं एरिया निकाल दूंगा तो वो आ जाएगा रिमेनिंग शेडेड पोर्शन। दो सेमी सर्किल को माइनस किया एरिया ऑफ द स्क्वायर में से। जब हमने फर्स्ट और थर्ड निकाला था ना, तो ये 2 सर्किल माइनस किया। अच्छा यूं है, वापस से समझो, मैं फिगर बनाता हूं। जब आपने फर्स्ट और थर्ड निकालना है तो ये 2 सर्किल को माइनस किया। फर्स्ट एंड थर्ड आए कि नहीं आए बताओ, आगे आगे सही है। फिर 2nd and 4th भी निकाल लिया, और चारों को जोड़ के और अपन ने क्या किया, एरिया ऑफ द ABCD माइनस एरिया ऑफ 1 2 3 4 का, 2nd 3rd 4th का माइनस करके उसको कर दिया, आंसर आ गया। बुक में देखिए, एरिया ऑफ द सेमी सर्किल ये निकाला 21.2, दूसरे का भी ये आ गया, तो शेडेड एरिया का आ गया ये वाला आंसर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, पर बहुत इजी है, अच्छा है। एक बार नहीं समझ में आए तो कोशिश करना, दिमाग लगाना कैसे हो सकता है। बिल्कुल सही है, बहुत इजी है, पजल जैसा है, लेकिन आपको मजा आएगा। ये क्वेश्चन एग्जांपल करेंगे, फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 12.3 के सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑल क्वेश्चन, 16 क्वेश्चंस। अभी तक जो मैंने पढ़ाया 12.2 एग्जाम्पल्स, आप सभी को प्रॉपर तरीके से समझ के सॉल्व करेंगे, रफ में सॉल्व करेंगे। उसके बाद फेयर कॉपी में उसको फाइनल बिल्कुल परफेक्ट लिखेंगे। और सभी बच्चे, होशियार बच्चे हो सभी बच्चे, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप 12.3 के क्वेश्चंस भी ट्राई करोगे। आपको अपने आप से कोशिश करके तैयार रहोगे। जब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, वी विल डू ऑल क्वेश्चंस, है ना। ओके।